Please join first. Only 30 students are joined till. Please join first. Join first. Okay. See, we have seen the numericals on boys calorimeter. I think boys calorimeter वरती एक न्यूमेरिकल आपण सॉल्व केले. Am I right? बॉयज कॅलोरीमीटर वरती हा न्यूमेरिकल आपण सॉल्व केले का काल? केले का? चॅट बॉक्स मध्ये मला सांगा. तुमचा आवाज मला काय ऐक नाही, मला काही समजेना. चॅट बॉक्स मध्ये सांगा तुम्ही. बॉयज कॅलोरीमीटर वरती आपण सॉल्व केले का प्रॉब्लेम? नो मॅम. हॅलो. No, okay, very good. Okay, thank you. Now see. Calculations on a boys calorimeter is completed. Okay, see here. This calculation of boys calorimeter is completed. Now we will see the one numerical on the boys calorimeter. Okay, write down. Write down the numerical.
Okay. Write down the numerical on the Boyle's calorimeter. Following observations were noted. Following observations were noted in the Boyle's calorimeter experiment. In the Boyle's calorimeter experiment, find the GCV and NCV of the gaseous fuel. NCV of the gaseous fuel. First, volume of gaseous fuel. Volume of gaseous fuel burn is equal to 0.1 meter cube. 0.1 meter cube. Second, weight of water circulated for cooling is equal to 27.5 kg. 27.5 kg. Third, weight of steam condensed is equal to 0.025 kg. 0.025 kg. Next, temperature of inlet water. Is equal to 25.5 degrees Celsius. 25.5 degrees Celsius. Next, temperature of outlet water. Is equal to minus 31.4 degrees Celsius. Minus 31.4 degree Celsius. Next, latent heat of water is equal to 587 kilocalorie per kg. 587 kilocalorie per kg. Okay, is it over? Is it over? Hello? Over or not? मला हे येस मॅम. ओके, चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. ठीक आहे, थँक्यू प्रणाली. प्रॉब्लेम मी रीड करते. ओके, थँक्यू आसमा. व्हॉल्यूम दिलेला आहे तुम्हाला गॅसचा, तो असेल तुमचा V. ओके, वेट ऑफ वॉटर टेकन असेल तुमचा W. वेट ऑफ स्टीम कंडेन्स्ड ते असेल कॅपिटल M. टेम्परेचर इनलेटचं असतं T1, आउटलेटचं असतं T2. त्यावरून आपण T2 मायनस T1 म्हणजे रायझिंग टेम्परेचर फाइंड आउट करणार आहोत. अँड तुमचा लॅटेंट हीट ऑफ वॉटर असेल 587. ओके, आपल्याला फाइंड काय करायचंय, जसं नेहमीप्रमाणे आपण फाइंड करतो. टू फाइंड HCV अँड LCV, वी हॅव्हिंग द फॉर्म्युला फॉर दिस इज द. ओके, राईट करूयात आपण. तुम्हाला फॉर्म्युला वगैरे आता सगळं माहिती झालंय कसं करायचे ते. लिहित सोडूया आपण. ओके, राईट डाऊन. Write the answer to find Roman first HCV, Roman second LCV. Roman first HCV, second LCV. Okay, we have किंवा given म्हटलं तरी चालेल. given किंवा we have कसं येईल या. V is equal to 0.1 meter cube. V is equal to
0.1 meter cube. W is equal to 27.5 kg. M is equal to 0.025 kg. T1 is equal to 25.5 degrees Celsius. T2 31.4 degrees Celsius. Latent heat of steam is equal to 587 kilocalorie per kg. Write all given values. Completed. Completed, yes or no? Okay, Surekha, thank you. Next, see the formula. Write down the formula for gross calorific value. Q is equal to W into bracket T2 minus T1 divided by V. Q is equal to W in the bracket T2 minus T1 divided by V. Okay. Put up the values 27.5 in the bracket, 31.5 minus 25.5 divided by 0.1. Okay, calculate and tell me the answer. Whether you are getting 1600 or not. Calculate and tell me the answer. Okay, कितना है आंसर आपका? कैलकुलेट करो 27.5 इन ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 0.1. आई थिंक कल हमने ये कैलकुलेट किया है, सिर्फ लिखा नहीं था. ओके, कितना है आंसर? ओके, 1650. ठीक आहे. ओके प्रणाली, 1650 आले. सगळ्यांचे 1650 आले. इथं 16, 22 आले 0.5. ओके, अजून कुणाचा आन्सर आले त्यांनी मेसेज करा. 1650. ओके ओके, सगळ्यांचे 1650 आले. ठीक आहे, हे लिहा तुम्ही. राईट, जे तुमचा आन्सर आला असेल ते तुमचं करेक्ट आहे. ठीक आहे. ओके प्रदीप, ओके प्रणाली, ओके ओके सुरेखा, ओके प्रणाली, आसमा यू आर राइट, अर्जुन, ऋतुजा, प्रणाली. ओके, वेरी गुड. ठीक है, लिखो, राइट डाउन. Q इज इक्वल टू 1622.5 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब. ओके, सबका आंसर 1650 आया है. इसका मतलब आपका जो आंसर है वो सही है. मे बी देयर इज ए मिस्टेक इन दिस नोट्स. ओके, then second, write down the Roman second, net calorific value, that is LCV, NCV or LCV. Write the formula. NCV is equal to GCV minus into bracket M divided by V into 587. Okay, put all the values, calculate the answer. Okay, 1503.25. ओके ओके प्रणाली, अजून कुणाचा आले आन्सर?
ओके अर्जुन, ठीक आहे, सगळ्यांचे सेम आलेत आन्सर. ओके, राईट डाऊन. Write down the value of NCV is equal to 1503.25. त्याला युनिट द्या किलो कॅलरीज पर मीटर क्यूब. ओके ओके अर्जुन, ठीक आहे. दोन मुलांनी सांगितले उत्तर. नेक्स्ट, आता नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आहे तो तुम्ही सॉल्व करा, नंतर सॉल्व करा when you getting the free time. Write down the following data. The following data was obtained. The following data was obtained in Boy's calorimeter experiment. In Boy's calorimeter experiment. First, volume of gas burn, NTP volume, is equal to 0.12 meter cube. Second, weight of water circulated for cooling is equal to 27 kg. Next, weight of steam condensed 0.025 kg. Temperature of inlet water 25.7. आउटलेट का टेम्परेचर दिया आपको 40.2 डिग्री सेल्सियस and latent heat of steam 570 kilocalorie per kg. Calculate the higher and lower calorific value of fuel at STP. Okay, क्या कैलकुलेट करना है आपको? हायर कैलोरिफिक वैल्यू मींस HCV and lower calorific value means LCV at STP. Can you solve it? Can you solve this numerical at home? आन्सर लिहून घ्या आन्सर, म्हणजे तुम्ही टॅली करू शकता. तुमचा HCV आलेला आहे 3200 and NCV आहे 3143. Can you solve at the home? चॅट बॉक्स मध्ये मला मेसेज करा. ओके ओके संगीता, ओके ठीक. आन्सर फक्त रिमेंबर राहू द्या, 3000 आणि 3000 मध्ये आले. ठीक. हे बॉयचेच न्यूमेरिकल्स आहेत. ओके, आता आपण लास्टचा पाहत आहोत पॉइंट, तो असेल तुमचा बायोडिझेल. हा पॉइंट जो आहे तो न्यूली ऍड केलेला आहे सिलेबसला. सी देखो biodiesel. What is biodiesel? See, it is a form of diesel fuel manufactured from vegetable and animal fats. The name indicates its meaning. Biodiesel means ये एक fuel होगा. Bio means उसमें vegetable oil, animal oil या फिर vegetables, animals का कोई तो involve होगा. ठीक है. So it is the form of diesel fuel. ये एक fuel का form है. कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे हम उससे? इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द वेजिटेबल ऑयल किंवा एनिमल फैट्स. ओके, इट इज शेप बायोडिग्रेडेबल एंड प्रोड्यूस लेस एयर पोल्यूटेंट. ओके, इट इज द फ्यूल व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल. इट प्रोड्यूसेस लेस एयर पोल्यूटेंट. ओके, जो हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं व्हीकल में, उससे जो पोल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं वो वेरी पॉइजनस रहते. फॉर एक्झाम्पल कार्बन मोनॉक्साइड असेल तुमचा, किंवा कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, सल्फर मोनॉक्साइड. दीज आर वेरी पॉइजनस पोल्यूटेंट्स, पॉइजनस एयर पोल्यूटेंट्स which pollute the air. So the biodiesel produces very less pollutants than the petroleum based diesel. Okay, biodiesel can be used in pure form or mixed with the petroleum diesel.
how it is prepared? बायोडिझेल, बायोडिझेल हे समजलं तुम्हाला. बायोडिझेल हे एक फ्युल आहे. कसं तयार करतो आपण? व्हेजिटेबल किंवा अॅनिमल ऑइल पासून तयार करतो. बायोडिझेल पासून जे एअर पोल्युटंट्स तयार होतात ते खूप कमी प्रमाणात असतात आणि लेस पॉइझनस असतात ऍज कम्पेअर टू द डिझेल दॅट विच इज युज्ड फ्रॉम द पेट्रोलियम ऑइल. Okay, so how it is prepared? See the methods of preparation. First, filter the vegetable and animal oil. Heat the vegetable oil up to 110 degrees Celsius to remove the water. Okay, पहले हमें क्या लेना है? वेजिटेबल ऑयल लिया मैंने एंड एनिमल ऑयल लिया. उसे हमें कहाँ तक बॉईल करना है? 110 तक, मीन्स 110 डिग्री सेल्सियस तक मैंने उसे बॉईल कर दिया. क्यों बॉईल करना है हमें? बिकॉज टू रिमूव द वॉटर विच इज प्रेजेंट. वॉटर प्रेजेंट असेल तर ते रिमूव्ह होईल, किंवा जब उसमें जो मॉइस्चर होगा वो रिमूव होने के लिए हमने उसको 110 डिग्री सेल्सियस तक बॉईल किया. किसे बॉईल किया? वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल को. नेक्स्ट, प्रिपेयर द सोडियम मेथॉक्साइड फ्रॉम सोडियम मेटल एंड मिथेनॉल. मैंने केमिकल प्रिपेयर कर दिया, एक सब्सटेंस प्रिपेयर कर दिया है सेपरेटली, सोडियम मिथॉक्साइड. ओके, सोडियम मिथॉक्साइड मैंने कैसे प्रिपेयर कर दिया? बाय यूजिंग द सोडियम मेटल एंड मिथेनॉल. बाय यूजिंग द सोडियम मेटल एंड मिथेनॉल आई विल प्रिपेयर sodium methoxide. Okay, then add the sodium methoxide and 20% methanol to the vegetable oil. जो हमने vegetable animal oil boil करके रखा है उसमें मैंने sodium methoxide add कर दिया and also I will adding the 20% methanol. ओके, रिफ्लक्स द मिक्सचर. इस मिक्सचर को हमको बॉईल करना है फॉर 30 मिनट्स एट द टेम्परेचर 60 to 90 डिग्री सेल्सियस. 60-90 डिग्री सेल्सियस तक हमें 30 मिनट के लिए दिस जो ऑल मिक्सचर है हमारा वेजिटेबल एनिमल ऑयल, सोडियम मिथॉक्साइड एंड 20% मिथेनॉल, इन सब मिक्सचर को हमें बॉईल करना है फॉर 30 मिनट्स. ओके, आफ्टर 1/2 hour cool this mixture and separate the precipitate. Add antioxidant to the biodiesel to avoid its become sticky due to oxidation and polymerization. जब हमारा जो रिफ्लक्स का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो हमें उसको उस मिक्सचर को कूल करना है एंड जो पीपीटी था क्रिएट हो गया है उसे सेपरेट करना है. अब इस बायोडीजल में हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे बिकॉज टू अवॉइड इट बिकम स्टिकी ड्यू टू द ऑक्सीडेशन. जब उसका ऑक्सीडेशन होगा बायोडीजल का तो क्या होता है, जो हमारा बायोडीजल है वो स्टिकी बनता है. ओके, सो हमें उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देना, नहीं, उसके लिए मैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देती हूँ. एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? ऑक्सीडेशन होने से उसका प्रिवेंशन करता है. ओके, so this is the preparation of biodiesel. I will repeat again. First हमें vegetable animal oil लेना है, उससे फिल्टर करना है. फिल्टर करने के बाद 110 डिग्री सेल्सियस को हमें उसको बॉईल करना है because to remove the some moisture or some water content. Then उसमें हमें सोडियम मिथॉक्साइड एंड 20% मिथेनॉल ऐड कर दिया है. अब इस मिक्सचर को हमें 30 मिनट के लिए 60 to 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सेट करके, उससे ज्यादा हमें टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करना. ठीक है, इस टेम्परेचर के बिटवीन हमें 30 मिनट्स मींस हाफ आवर तक हमें उसे बॉईल करना है या फिर रिफ्लक्स करना है. आफ्टर कंप्लीट दिस प्रोसेस ऑफ रिफ्लक्स देन कूल द मिक्सचर एंड सेपरेट द पीपीटी एंड लास्टली वी आर एडिंग some antioxidant into it. Okay, is it clear for you? Do you understand it? साकिब, ओके, साकिब आपको समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखो. बायोडीजल कैसे प्रिपेयर किया, समझ में आ गया सबको? डू यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? से यस और नो? ये 46 समृद्धि समझ में आ गया आपको प्रिपरेशन की प्रोसीजर? Yes, ma'am. Do you understand it clearly? Yes or no? Say yes or no, please. If you don't understand, I will repeat again. Okay, ठीक है, समजले, ठीक है, रिपीट करण्याची गरज नाही. नेक्स्ट, रिएक्शन.
देखो अभी इसकी रिएक्शन वेजिटेबल ऑयल जो है हमारा वो CH2COOR CHCOOR एंड CH2COR है। मीन्स जो एनी भी कौन सा भी वेजिटेबल एनिमल ऑयल जो होता है उसमें एस्टर होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी आपको लुब्रिकेंट में बताया था कि जो ऑयल होता है वेजिटेबल ऑयल उसमें एस्टर ग्रुप प्रेजेंट होता है। सो हियर COO इज द एस्टर ग्रुप, ओके। R1, R2 and R3 these are the three different alkane. इट मे बी मिथेन असू शकतं, ते इथेन असू शकतं, प्रोपेन किंवा 10 नंबर कार्बनचा डिकेन असू शकतो, ठीक है। R1, R2, R3 these are the different alkanes. So this is called as vegetable oil, ओके। वेजिटेबल ऑयल में हमने क्या ऐड कर दिया है, मिथेनॉल एंड हियर सोडियम मेथॉक्साइड इज प्रेजेंट। वेजिटेबल ऑयल में हमने क्या क्या ऐड कर दिया था, सोडियम मेथॉक्साइड ऐड कर दिया, वो मैंने इधर एरो के ऊपर लिखा है। एंड ऑल्सो हमने क्या ऐड कर दिया था उसमें, मिथेनॉल, ओके, CH3OH. सो आवर रिएक्शन बिकम्स, आवर प्रोडक्ट्स बिकम्स R1COOCH3, R2COOCH3 plus R3COOCH3. So this chain breaks down into three these रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। देखो ये पहली वाली जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है R1 CH2, मैं इधर से रीड करती हूँ इस साइड से, तो आपके समझ में आएगा। R1COOCH2 जो था, ओके, R1COOCH2 उसका कन्वर्जन R1COOCH3 में हो गया, ओके। क्या डिफरेंस है R1COOCH2 एंड R1COOCH3 में? सो हियर आपको जो CH2 दिख रहा है, CH2 का कन्वर्जन CH3 में हुआ, ओके। ओनली दिस इज द डिफरेंस, CH2 का कन्वर्जन CH3 में हुआ। देन मिडल वाला जो स्ट्रक्चर है, मिडल वाला उसको देखो, R2COOCH है, ओके। R2COOCH का कन्वर्जन देखो यहाँ R2COOCH3 में हो गया। एंड लास्ट R3COO का कन्वर्जन, ये सेपरेट हो, यहाँ से ब्रेक, ये से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, यहाँ this bond is also breaks and it is converted into three separate products, R1COCH3, R2COCH3 and R3COCH3, okay. Plus side product is the CH2OH, CHOH and CH2. Name of this compound is the glycerol, okay. So by the reflex reaction we are getting the biodiesel. ये जो फॉर्म्युला है, ये जो these are the compounds of biodiesel, त्याला आपण एकत्रित कंबाइन बायोडीजल, उसे कंबाइनली हम बायोडीजल कह सकते हैं। एंड आल्सो वी आर गेटिंग द साइड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल, ओके। दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द बायोडीजल, इट्स प्रिपरेशन एंड इट्स रिएक्शन, ओके। डू यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? If you are understand, then we will write the content. Do you understand it clearly? याच्यात काय अडचण आहे का? इंट्रोडक्शन म्हणजे बायो, व्हॉट इज बायोडीझेल, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन, काय अडचण आहे का याच्यामध्ये? इसमें कोई डाउट है क्या आपको इस पेज पे? इस पेज में कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी, आई विल रिपीट अगेन। अगर नहीं है तो नो बोलो, ओके। हॅलो, मेसेज मध्ये चॅट बॉक्स मध्ये सांगा रे, काय समजलं नाही असेल, समजलं नसेल तर, समजलं असेल तर येस म्हणा, म्हणजे आपण लिहून घेऊया। बायोडीझेल हा यावर्षी न्यूली ऍड केलेला पॉइंट आहे, MCQ मध्ये जास्त फोकस असणार आहे या बायोडीझेल वर। बोला पटपट, येस तरी म्हणा किंवा नो म्हणा। निकिता लोहार, E30, निकिता, डू अंडरस्टैंड इट क्लियरली? ओके शुभदा, थैंक यू सो मच शुभदा। राइट डाउन, ओके संगीता, थैंक यू। राइट डाउन फास्ट। बायोडीझेल इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन इथं थोडं सेंटेन्स मॅच होत नाहीत, मी जसं सांगते तसं लिहा, मी तुम्हाला सांगते। लिहा बायोडीजेल, त्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट लिहा, इंट्रोडक्शन वगैरह काय लिखू नका। बायोडीजेल उसमें रोमन फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैं आपको बताती हूँ वैसा लिखना।
It is a form of diesel. It is a form of diesel fuel. It is a form of diesel fuel manufactured from vegetable oil and animal fats. व्हेजिटेबल फॅट्स म्हणू शकत नाही आपण. फॅट हा एक ऑइलचाच टाइप आहे, पण अॅनिमल ऑइल म्हणण्यापेक्षा आपण फॅट्स का म्हटले की कारण की जी चरबी असते, अॅनिमलची चरबी जसं म्हणतो आपण मराठीमध्ये, फॅट्स म्हणजे काय तर चरबी. ओके, त्यामुळे आपण चरबी घेतली आणि ती बॉईल केल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्जन ऑइल मध्ये होत असते आपल्याला माहिती. त्यामुळे आपण त्या क्रूड प्रोडक्ट जो असेल, क्रूड आपला फर्स्ट रिएक्टंट, तर तो फॅट्स म्हणून घेतला आपण, अॅनिमलचा ऑइल घेतलेला नाही. सो इट इज ए फॉर्म ऑफ डिझेल फ्युअल मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम व्हेजिटेबल ऑइल अँड अॅनिमल फॅट्स. नेक्स्ट रोमन सेकंड पॉइंट लिखो. इट इज बायोडिग्रेडेबल, मीन्स उसका डिकम्पोजिशन होता है. ओके, इट इज बायोडिग्रेडेबल and produce less air pollutants than petroleum based. पेट्रोलियम का स्पेलिंग आपको लिखना है PETROLEUM. ओके, आई नहीं लिखना आपको, यू लिखना, सॉरी ई लिखना, EUM. पेट्रोलियम बेस्ड डीजल. And Roman third point लिखो. Roman third, biodiesel can be used in its pure form or mixed with petroleum diesel. Again petroleum का spelling EUM लिखो, mixed with petroleum diesel. ओके, नेक्स्ट लिखो इसका प्रिपरेशन. रोमन फर्स्ट प्रिपरेशन में रोमन फर्स्ट लिखो. फिल्टर द वेजिटेबल ऑयल एंड एनिमल फैट्स. फिल्टर द okay, filter the vegetable oil or animal fat. Roman second. Heat the vegetable oil up to 110 degrees Celsius. 100 लिखो. Okay, heat the vegetable oil at 110 degrees Celsius. 110 degrees Celsius to remove the moisture and water content. To remove the moisture and water content. Next, third लिखो. Prepare sodium methoxide from sodium metal and methanol. Next, add sodium methoxide and 20% methanol to vegetable oil.
add sodium methoxide and 20% methanol to vegetable oil. Next, reflux the mixture for 30 minutes. Reflux the mixture for 30 minutes at 60 to 90 degrees Celsius. 60 to 90 degree Celsius. Next, cool this mixture and separate the precipitate. Next, last, add antioxidant to the biodiesel. So in the biodiesel, add oxidant in the biodiesel to avoid its becomes sticky. Now to avoid its oxidation. To avoid its oxidation and polymerization. Its oxidation and polymerization. Okay, next, lastly, reaction. CH2COR1, CHCOR2, bonded CH2, C double bond OR3 plus 3CH3OH, arrow के ऊपर लिखो CH3O and A and delta. Delta represent the sign heating. Okay, delta क्या represent करता है? Heating का sign है वो. It is converted into R1COCH3 plus R2COCH3 plus R3COCH3 plus glycerol CH2CHOH CH2OH. Glycerol. Is it over? Fast लिखो. Is it over? झाले का कंप्लीट? कंप्लीट हो या? कंप्लीट हो गया कि नहीं? ओके. ज्या मुलांचं रायटिंग स्लो आहे ना त्यांनी स्क्रीनशॉट काढून घेऊन नंतर तुम्ही कंप्लीट करा. ठीक आहे. नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ बायोडीजल. अभी इस बायोडीजल के एडवांटेजेस क्या है एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. सो सी द फर्स्ट, it is produced from renewable sources. जो एनिमल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है, वो रिन्यूएबल है. मीन्स हम उसे जब चाहे तब रिन्यू कर सकते. ऐसा नहीं कि वो एक 2-3 साल में या फिर 10-15 साल में खत्म होने वाला है. ओके, रिन्यूएबल है, नेचुरल सोर्सेस. सो it is produced from the renewable sources. It can be used in diesel engine. ओके, अँड लेस ग्रीन हाऊस इफेक्ट असेल त्याचा, अँड इमिटेशन. ग्रीन हाऊस इफेक्ट तुम्हाला माहिती आहे, जे कार्बन डायऑक्साईड बाहेर पडतात ते ओझोनचे जे लेयर असतात त्यांना होल्स करतात. त्यामुळं जे एन्व्हायरमेंटचं पूर्ण जी सिस्टम आहे ती ब्रेकडाऊन होते. फॉर एक्झाम्पल रेन असेल, आपला रेनिंग असेल तर हे त्याला आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणतो. तर जो हे जे यापासून जे पोल्युटन्स क्रिएट होतात, इसकी वजह से जो एयर पोल्यूटेंट क्रिएट हो गए वो लेस हाजार्डस होते. सो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कम होगा. ओके, देयरफॉर लेस ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड इमिटेशन. नेक्स्ट एडवांटेजेस है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन टॉक्सिक. ओके, जो बायोडीजल है वो बायोडिग्रेडेबल है, पहले भी हमने देखा है, एंड नॉन टॉक्सिक है. ओके, पॉइजनस बिल्कुल नहीं है, टॉक्सिक नहीं. नेक्स्ट, बेटर फ्यूल इकोनॉमी. उसकी जो इकोनॉमी है वो बेटर फ्यूल इकोनॉमी है. नेक्स्ट एडवांटेजेस है पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट. नेक्स्ट, मोर हेल्थ बेनिफिट्स. एंड लास्ट इज द ग्रोन प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्युटेड लोकली. ओके, ग्रोन प्रोड्यूस्ड अँड इट इज डिस्ट्रीब्युटेड लोकली. आपण ते लार्ज अमाउंट मध्ये प्रोड्यूस करू शकतो अँड लोकली आपण ते डिस्ट्रीब्यूट करू शकतो. ओके, these are the some advantages, very simple and very easy advantages. There is nothing to explain more. Next, see the disadvantages of biodiesel. What are the disadvantages? Variation in quantity of biodiesel. Okay, there is variation. नेक्स्ट असेल तुमचा नॉट सुटेबल फॉर यूज इन द लो टेम्परेचर. लो टेम्परेचर को हमें पता है कि जो हमारे ऑयल होते हैं वो
क्लाउडिंग होता है हमारे ऑयल का, सो लो टेम्परेचर को ये सुटेबल नहीं होगा. नेक्स्ट फूड शॉर्टेज असेल. व्हेजिटेबल ऑइल, अॅनिमल ऑइलच्या सध्याच्या किमती तुम्हाला माहिती आहेत, म्हणजे शॉर्टेज आहे फूडचं, त्यामुळे शॉर्टेज असल्यामुळे त्याच्या किमतीमध्ये वाढ होत असते नेहमी. सो नेक्स्ट असेल तुमचा वॉटर शॉर्टेज आहे. इंक्रीज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर. जो एनिमल वेजिटेबल ऑयल हम प्रिपेयर करते हैं, सो जो खेती है, खेती में हम नंबर ऑफ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, सो इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर. मोनोकल्चर है. फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी डिसएडवांटेजेस होगा, जो फ्यूल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे. सो नेक्स्ट असेल तुमचा क्लॉगिंग इन इंजिन. जो वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल होता है, उसका इंजिन में क्लॉग हो बन जाता है, मीन्स क्लाउडिंग जसं होते, क्लॉग बनते, म्हणजे जे इंजिन असेल त्याच्यामध्ये ब्लडचं क्लॉटिंग तुम्हाला माहिती आहे ना, ब्लडची जी व्हेन असते त्यामध्ये जसं ब्लड क्लॉट होतं, म्हणजे ब्लडची क्लॉट तयार होते. मराठीमध्ये जसं आपण म्हणतो की ब्लडची गुठळी तयार होते ना, सेम तसं या ऑइलचं इंजिन मध्ये तयार होते पहा. क्लॉगिंग इन इंजिन. अँड लास्ट डिसएडवांटेजेस इज यूज्ड ऑफ पेट्रोलियम डिझेल to produce the biodiesel. Okay, these are the advantages and disadvantages. Please take the screenshot and complete when you having the free time. Okay, please take screenshot and later you will complete it. Okay, काढला का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि नंतर तुम्ही लिहू शकता. लिहून देण्यात बराच वेळ जाते. आज आपल्याला हा टॉपिक कंप्लीट करायचंय. तुमची युटी थर्ड जवळ आले, लगेच तुम्हाला फोर्थ टॉपिक मला स्टार्ट करावं लागेल. ओके, काढला का स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट काढून घ्या. ज्यावेळेस तुम्हाला फ्री टाइम मिळेल त्यावेळेस तुम्ही हे कंप्लीट करा. पण लिहायचंय हा, सगळ्यांनी कंप्लीट करायचं तुम्हाला. काढला का स्क्रीनशॉट? ओके, थँक्यू सुरेखा. नेक्स्ट पेट्रोलियम. ओके, पेट्रोलियम आपल्याला माहिती आहे इज डार्क ग्रीनिश विस्कस ऑइल. ओके, डार्क ग्रीनिश विस्कस ऑइल which is usually found in earth crust. The oil is usually found clotting upon a layer of brine and has a layer of gas top of it. मी सोप्या भाषेत सांगते. पेट्रोलियम हे एक कच्चं तेल जे म्हणतो आपण, जे खनिमधून काढतो, म्हणजे पेट्रोल डिझेल जे आपल्याला येतं ते एक विहीर असते आपण म्हणूया, किंवा एक मोठा खड्डा असतो, त्यामध्ये उसमें क्या होगा, वेल में, उस वेल में हमारा क्रूड ऑयल प्रेजेंट होता है. स्टार्टिंग में क्या होगा, क्रूड ऑयल होता है. उस क्रूड ऑयल में सॉइल्स के पार्टिकल, रॉक के पार्टिकल, उसमें टार होता है एंड नंबर ऑफ अदर हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. तो हम क्या करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन ऑफ ऑयल करते हैं एंड पेट्रोल को सेपरेट करते हैं, डीजल को सेपरेट करते हैं, टार को सेपरेट करते हैं एंड केरोसिन. दीज आर द ऑयल्स विच इज सेपरेटेड. And lastly which is converted into pure petrol, diesel, kerosene and last में जो रहता है वो tar होता है. ठीक है. So what is the composition of the petroleum? So the average composition of crude petroleum means आपण त्याला कच्चं तेल म्हणतो का. So average जे तुमचं कंपोजिशन होता है आपका, एवरेज कंपोजिशन, उसमें कार्बन होता है 79.5 to 87.1% तक कार्बन की परसेंटेज रहती है. क्रूड में देख रहे हैं हम. हाइड्रोजन की रहते हैं 11.5 to 14.8. नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जो परसेंटेज 0.1 to 3.5% तक वेरी होती है. एंड जो सल्फर है उसका परसेंटेज रहता है 0.1 to 3.5%. So these values may be asked in multiple choice questions. So next see the classification of petroleum. Okay, there are 3 types of petroleum. फर्स्ट असेल तुमचा पॅराफिनिक बेस टाइप क्रूड, एस्फाल्टिक बेस, बेस्ड नाहीये ते, बेस है, बेस, BASE. ओके, पैराफिनिक का बेस होगा, एस्फाल्टिक का बेस होगा एंड थर्ड होगा मिक्स्ड बेस टाइप क्रूड. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ द पेट्रोलियम. फर्स्ट होगा पैराफिनिक बेस टाइप, सेकेंड होगा एस्फाल्टिक बेस टाइप एंड थर्ड होगा मिक्स्ड बेस टाइप ऑफ क्रूड. सो फर्स्ट देखो मैं एक्सप्लेन करती हूँ पैराफिनिक बेस टाइप को.
This is mainly composed of the saturated hydrocarbon from CH4 to C35. देखो पैराफिनिक बेस टाइप का जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, CH4 मींस फर्स्ट वाला जो कार्बन है अल्केन का हाइड्रोकार्बन फ्रॉम नंबर 1 दैट इज मीथेन, मीथेन टू कार्बन नंबर 35 तक हम उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, एंड लिटिल ऑफ नैफ्थेलिन, उसमें हम नैफ्थेलिन थोड़ा सा ऐड कर देंगे, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी उसमें प्रेजेंट होगी. फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की जो कार्बन के नंबर है वो कहां से होगा, कार्बन नंबर 35 सॉरी कार्बन नंबर 18, कार्बन नंबर 18 टू कार्बन नंबर 35 तक हम उसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे, आर सेमी सॉलिड कॉल्ड एज वैक्सेस. ओके, पैराफिनिक बेस टाइप का जो क्रूड होता है वो सेमी सॉलिड होता है, उसे हम वैक्स कहते हैं. उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्या कंपोजिशन क्या है, हाइड्रोकार्बन जो है वो CH4 टू C35 तक है, एंड लिटिल नैफ्थेलिन आल्सो प्रेजेंट है, एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं प्रेजेंट. कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हो गए, C18 टू C35 तक पेट्रो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसे हम पैराफिनिक बेस को वैक्स भी कह सकते हैं. नेक्स्ट होगा आपका एस्फाल्टिक बेस टाइप क्रूड. दिस इज मेनली कंटेन साइक्लोपैराफिन, उसमें मेनली क्या होगा, साइक्लोपैराफिन प्रेजेंट होगा, या फिर नैफ्थेलिन भी है, with smaller amount of paraffin and aromatic hydrocarbon. Smaller amount में paraffin and aromatic hydrocarbon होता है. Mainly क्या है, mainly है cyclopropene, okay, and naphthalene. These are the mainly presents, and smaller quantity में paraffin और aromatic hydrocarbon present होते हैं, उसे हम asphaltic base type क्रूड पेट्रोलियम कहते हैं. एंड थर्ड जो है आपका मिक्स्ड बेस टाइप क्रूड पेट्रोलियम, इट इज कंटेन पैराफिनिक बोथ, पाथ नहीं थे, बोथ BOTH बोथ, इट इज कंटेन बोथ पैराफिनिक एंड एस्फाल्टिक. उसमें मिक्स्ड का मतलब है दोनों ही प्रेजेंट होंगे. इट इज कंटेन बोथ पैराफिनिक एंड एस्फाल्टिक हाइड्रोकार्बन्स which are generally rich in the semi-solid waxes. Okay, which are generally rich in the semi-solid waxes. So these are the types of petroleum. Okay, are you getting? Do you understand it clearly? हे पण तुम्हाला कंप्लीट करायचं, हे पण मी लिहून देणार नाही, नोट्स दिलेत टीचिंग डायरी मध्ये, ओपन करा आणि कंप्लीट करा, किंवा स्क्रीनशॉट घ्या. स्क्रीनशॉट घेऊन तुम्हाला ज्यावेळेस फ्री टाइम मिळेल त्यावेळेस तुम्ही हे कंप्लीट करा. टेक द स्क्रीनशॉट. ओके, घेतला का स्क्रीनशॉट? नेक्स्ट देखो, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. ओके, इथं जरी तुम्हाला स्क्रीनशॉट घेतला नाही, तुम्ही कंप्लीट दिसत नाही, तर टीचिंग डायरी मध्ये तुम्हाला नोट्स प्रोव्हाइड केले, तिथून तुम्ही ओपन करून लिहू शकता. नोट्स मध्ये आहे, हे लास्टचा जो पॉइंट आहे नोट्स मध्ये आहे, पीपीटी मध्ये नाही. ओके, सो ओपन द नोट्स अँड कंप्लीट इट. नेक्स्ट इज द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. टू पेजेस आर रिमेनिंग. ओके, देखो पेट्रोलियम का ओरिजिन कैसे हो. अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, पेट्रोलियम हैज रिजल्टेड फ्रॉम partial decomposition of marine animals and the vegetable. ओके, मॉडर्न थ्योरी ने हमको क्या बताया कि जो पेट्रोलियम है वो कैसे प्रिपेयर हो गया है या फिर कैसे फॉर्म हुआ है. तो पेट्रोलियम जो है जब मराइन एनिमल्स एंड वेजिटेबल है उसका पार्शियल डिकम्पोजिशन होने के बाद पेट्रोलियम प्रिपेयर्ड होता है. पेट्रोलियम कैसे प्रिपेयर होता है, बाय द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ मराइन एनिमल्स. मराइन एनिमल्स मींस द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सी. जो सी है, सी में जो तो आपके एनिमल्स है उसे हम मराइन एनिमल्स कहते. समुद्रातले जे प्राणी असतात त्यांना आपण मराइन एनिमल्स असं म्हणतो. मीन्स मराइन एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स का जब पार्शियली डिकम्पोजिशन होगा, पार्शियली मीन्स पार्टली,
not completed. Partially means not completed. So petroleum is formed as a result from the partial decomposition of marine animals and the vegetable. Okay. Second, change in earth at the buried. These are material underground. Okay. Change in earth नाही आपण असं म्हणूया की these are the material which is buried underground. Okay, these material, कोणता मटेरियल पार्शली डिकम्पोजिशन झालेलं मटेरियल हे जमिनीच्या आत पुरलेलं गेलं होतं. ठीक आहे. द पार्शल डिकम्पोज्ड मटेरियल, these are the buried under the ground. Okay, they have been subjected to intense and pressure and heat during the ages of the time. जे एनिमल्सचं डिकम्पोजिशन, व्हेजिटेबलचं जे डिकम्पोजिशन होतं ते सॉइलच्या अंडर द ग्राउंड मध्ये बरीड झालेलं होतं. ठीक आहे. तर बरीड झाल्यामुळे उसमें क्या होगा, तो सो इंटेंस प्रेशर, इंटेंस का स्पेलिंग ये सी होगा इधर, इंटेंस प्रेशर मीन्स हाई प्रेशर उसमें डेवलप होगा डिकम्पोजिशन के ऊपर एंड हीट प्रोड्यूस होगी ड्यूरिंग द एजेस ऑफ द टाइम. सो द कन्वर्जन ऑफ दीज मटेरियल into various hydrocarbons, conversion of these materials into various hydrocarbons under the influence of radioactive substance. Okay, जो डिकम्पोजिशन था मराइन एनिमल्स एंड वेजिटेबल का, जो ये डिकम्पोजिशन सॉइल के अंडर बरीड होगा, बरीड होने की वजह से उस पे प्रेशर आएगा, हीट क्रिएट होगी, सम हीट मे बी रिलीज्ड एंड द कन्वर्जन ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल का कन्वर्जन वेरियस हाइड्रोकार्बन के कार्बन में हो गया है अभी, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, किसके प्रेजेंस में कन्वर्जन हो चुका है, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ठीक है. इट इज द ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कैसे प्रिपेयर होगा, ये इसका ओरिजिन है. देन नेक्स्ट से, अब जो पेट्रोलियम है हमें पता चला है कि वो कैसे प्रिपेयर हो चुका है. मराइन एनिमल या फिर वेजिटेबल जो है उसका पार्शियली डिकम्पोजिशन होने के बाद वो बरीड हो गए हैं, उस पे प्रेशर क्रिएट होगा, इंटेंस प्रेशर, सो हीट सम डेवलप हो सकती है एंड इट इज दिस मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन. This line is very important. The conversion of this material into hydrocarbon. Hydrocarbon में convert हो गया. Hydrocarbon means is nothing but our crude petroleum oil. Then refining of crude petroleum. अब हमें पता चला है कि पेट्रोलियम ऑयल कैसे प्रिपेयर हो चुका है. So अब उसका हमें प्यूरिफाई करना है. क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो है उससे हमें प्यूरिफाई करना है. ठीक है. मीन्स रिफाइनिंग. रिफाइनिंग मीन्स व्हाट, प्यूरिफाइंग. So next see कैसे हम उसे प्यूरिफाई करेंगे. The crude oil is separated into various useful fractions. क्रूड ऑयल जो है उसे हमने पहले तो सेपरेट कर दिया है हमने बाय द फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मेथड. फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन मेथड मी तुम्हाला दाखवते. इथं पहा, एक टँक आहे इथं. या टँक मध्ये आपण इथून, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक पाइप है, उस पाइप की हेल्प से मैंने उसमें क्रूड ऑयल जो है वो ऐड कर दी. ओके. अब यहाँ पे डिफरेंट फ्रैक्शन से देखो, यहाँ पे डिफरेंट क्या है, कंपार्टमेंट से. ओके, कंपार्टमेंट है यहाँ पे देखो. अभी नेक्स्ट हमने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेम्बर है उसमें क्रूड पेट्रोलियम को ऐड कर दी. Finally converted into desired specific products. The process कंपार्टमेंट में हमने क्यों ऐसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है हमारा, उसमें ऐसे कंपार्टमेंट हमने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि क्रूड पेट्रोलियम ऑयल जो होता है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, टार, ये सब मिक्सड रहता है, सेपरेट नहीं होता. हम प्यूरिफाई करके उन्हें सेपरेट करते हैं. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फर्स्ट वाला जो कंपार्टमेंट है वहां पे हमने पेट्रोलियम को सेपरेट कर दिया, पेट्रोलियम ईथर. सेकेंड वाला है वो यहाँ पे गैसोलीन सेपरेट कर दिया. थर्ड जो है नैफ्थलीन है. नेक्स्ट उसके है केरोसिन. नेक्स्ट है डीजल ऑयल. नेक्स्ट उसके होगा लुब्रिकेटिंग ऑयल. इन दिस वे we can separate the all the hydrocarbons which is present in our crude oil. Okay, next देखो, तो हमने क्या कर दिया, इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं.
ओके, रिफाइनिंग क्या होती है, एक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चेंबर में हम क्रूड ऑयल को ऐड करते हैं एंड उसका हम सेपरेशन करते हैं इनटू द नंबर ऑफ डिजायर्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिफाइनिंग ऑफ crude oil, and the fluid set for the purpose are called as oil refineries. Okay, these are called as oil refineries. All these are oil refineries. Okay, see, then refining involves the following step. इस refining में जो steps है वो हम study कर लेते हैं. देखो, पहला वाला step है separation of water. हमारे crude oil में जो water है उसे हम separate कर देंगे. Cottrell's process. Okay, this is called as Cottrell's process. Separation of water is taking place by using the Cottrell process. The crude oil from the oil is extremely stable emulsion of oil and salt water. Okay, crude oil जो है वो emulsion होता है. किसका emulsion होगा? Oil and salt and water. ऑयल, सॉल्ट एंड वाटर का क्रूड ऑयल क्या होता है, मिक्सचर होता है या फिर उसे हम इमल्शन कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम हार्मफुल सल्फर कंपाउंड को रिमूव करेंगे. ओके, कैसे रिमूव करेंगे? सी, दिस इन्वॉल्व्स द ट्रीटिंग ऑयल. ओके, दिस इन्वॉल्व्स ट्रीटिंग ऑयल विथ ए कॉपर ऑक्साइड. A reaction occurs with the sulfur compound which results the formation of कॉपर सल्फाइड. देखो, पहले स्टेप में हमने वाटर को रिमूव कर दिया, सेकेंड स्टेप में हमें सल्फर कंपाउंड को रिमूव करना है एंड जो ये हमारा प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल को हम कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे. वहां पे एक रिएक्शन प्रिपेयर होगी. सो विच इज ऑकर्स द सल्फर कंपाउंड विच रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फाइड. जब हम हमारे क्रूड ऑयल में, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल में कॉपर ऑक्साइड ऐड करते हैं तो सल्फर का कन्वर्जन कॉपर सल्फाइड में हो जाता है. सल्फर का कन्वर्जन कॉपर सल्फाइड में हो जाता है which is then removed by the filtration. उसे हम कॉपर सल्फाइड को फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से रिमूव कर देंगे. नेक्स्ट थर्ड स्टेप होगा आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. लास्ट, द क्रूड ऑयल इज देन हीटेड तो अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस. क्रूड ऑयल को हमने हीट कर दिया 400 डिग्री सेल्सियस तक को इन एयर आयरन रिटॉर्ट वेयर बाय ऑल वोलेटाइल द कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सेप्ट द रेसिड्यू ओनली. हाँ, इथं ज्यावेळेस तुम्ही राईट करता असाल एक्सेप्ट द रेसिड्यू आर इव्हॅपोरेटेड. द हॉट वेपर आर देन पास्ड अप ए फ्रॅक्शनल कॉलम as a small fractional column which is called cylindrical tower. Tall आहे हे, tall, fall नाही, tall, which is tall cylindrical tower containing a small chimneys. पहा, मी एकदा सांगते तुम्हाला इथं डायग्राम पाहून. हे क्रूड ऑइल असेल, ठीक आहे. क्रूड ऑइल आपण इथून पास केलं. आता या क्रूड ऑइलला ना इथं जे तुम्हाला असं चेंबर दिसते, कंटेनर दिसते ना, बाउल सारखं डिश टाइप दिसते, इथं आपण ह्याला स्टीम देतो, हीट करतो. हीट केल्यानंतर त्याचे वेपर्स क्रिएट होतात. ओके, जब हम उसे हीट करेंगे सो इसका कन्वर्जन वेपर्स में होगा. सो जो वेपर्स है वो यहाँ से पास होंगे. ओके, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ चेम्बर्स लगा या फिर आउटलेट कह सकते हैं हम. सो पहले वाला जो कंपार्टमेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो उसका वेपरेशन भी फास्टली होगा. सो फर्स्ट वी कलेक्ट द पेट्रोलियम ईथर. फर्स्ट वाला जो पोर्शन होगा या कंटेनर होगा, जो कंपार्टमेंट है उसमें हम पेट्रोलियम ईथर कलेक्ट करेंगे. सेकेंड में गैसोलिन, नैप्थलीन. इस in this way we can collect all these types of hydrocarbons which is obtained from the crude oil by using the fractional distillation process. Okay, so जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसे हम ट्रे कहते हैं. देखो यहाँ पे एक ट्रे है, उस ट्रे के ऊपर हम गैसोलीन या नैप्थलीन या केरोसिन कलेक्ट कर सकते. हियर डाउन स्पॉट इज देयर. डाउन स्पॉट किसके लिए होगा? वेपर्स यहाँ से ऊपर जा सके. ओके, इसकी वजह से डाउन स्पॉट की हेल्प से हमारे जो वेपर्स है वो इस ट्रे में कलेक्ट होगी. एंड दिस इज द लूज कैप. ओके, ये क्या है? लूज कैप है. एंड इसके लास्ट में यहाँ पे हेवी ऑयल प्रेजेंट होगा. ओके, फर्नेस है, उसे हमें कब तक हीट करना होगा? 400 डिग्री सेल्सियस तक हमें उसे हीट करना होगा. ठीक है, सो हियर
your the third topic fuel is completed. Remaining other 2 pages जे असतील ते writing राहिलेलं आहे ते writing please तुम्ही complete करा when you are getting the free time. Okay, if you have any doubts regarding to this point, so you can ask me or you can call me anytime. I will give you an satisfactory answer. Okay, please complete these 2 pages, then we will start new topic at tomorrow. Okay, if you have any doubts regarding to this topic, then please ask me. काय एक डाउट्स असतील तर विचारा, नसतील तर नो मॅम म्हणून सांगितलं, नो म्हणून म्हणजे आपण मीटिंग एंड करू शकतो. ठीक आहे, here our topic fuel is completed, only writing remains, only 2 pages are remaining. Can you complete it? It is my humble request to you. Can you complete? Please complete it. Okay, request to you. Can you complete it? Okay, thank you Sarika, thank you so much. Okay, okay, should we stop here? Should we stop? Okay Pranal, thank you. Okay Pranal, thanks. I will end the meeting from my side.